of UT of JNK, and who is in charge, Minister Minister of of Mining Mining as as well, well, Shri Shri Surendra Surendra Kumar Kumar Chaudhary Chaudhary ji, ji, Additional Additional Secretary Secretary Ministry Ministry of of Mines, Mines, Shri Shri Sanjay Sanjay Lohia ji, Lohia ji, Joint Joint Secretary Secretary Ministry of Ministry of Mines, Mines, Srimati Srimati Farida Farida M. M. Nayak ji, Nayak ji, officers, officers, esteemed esteemed invitees. invitees and friends. It is a It is a momentous momentous occasion occasion for the for the launch of launch of e-auction of e-auction of 7 seven identified identified limestone limestone blocks blocks across across Anantnag, Anantnag, Rajouri Rajouri, and and Poonch Poonch districts of districts of Jammu and Jammu and Kashmir. Kashmir. Your Your esteemed esteemed presence presence underscores the underscores the significance significance of of this this initiative initiative towards towards harnessing harnessing the the mineral mineral potential potential of of our our region region and and ushering ushering in in a a new new era era of of transparent, transparent, technology-driven technology-driven resource resource management. management. We are We are grateful grateful for your for your encouragement encouragement and and support support as we as we strive to strive to unlock unlock opportunities opportunities for for economic economic growth growth and and employment in employment in Union Union Territory Territory through through responsible responsible mining mining policies, policies, leveraging leveraging technology, technology, and and ensuring ensuring transparency. transparency. It is It is indeed indeed a a historic historic moment for moment Jammu for and Jammu and Kashmir Kashmir Mining Mining Department Department as we as we launch the launch the first first ever ever e-auction e-auction of of major major mineral mineral limestone limestone blocks in blocks the in the Union Union Territory. Territory. This This pioneering pioneering initiative is initiative is expected to expected to bring in bring in approximately approximately 500 500 crores crores revenue revenue for for UT of UP of JNK JNK by by unlocking the unlocking the mineral mineral wealth wealth of of limestone in limestone in districts of districts of Anantnag, Anantnag, Rajouri Rajouri and and Poonch. Poonch. The The transparent transparent electronic electronic bidding bidding process will process will boost boost investor investor confidence, confidence, open new open new opportunities opportunities for for entrepreneurship, entrepreneurship, ensure ensure setting up setting of up of cement, cement other and other mineral-based mineral-based industries, industries and and generate generate substantial substantial employment employment opportunities opportunities for the for the local local population. population. We are We are also also in in process process for for processing processing 24 new 24 new limestone limestone blocks, blocks, which shall which be shall be brought to brought to e-auction by e-auction by March March 2026 with 2026 an with an estimated estimated revenue revenue of of around around 1,500 1,500 crores crores for the for the UT, UT, further further accelerating accelerating economic growth economic and growth and development. development. In our In our efforts to efforts to use use technological technological advancements and advancements and transparency, transparency, Jammu Jammu Kashmir has Kashmir has embarked on embarked a on new a new horizon in horizon in mining by mining by introduction of introduction of Integrated Integrated Mining Mining Surveillance Surveillance System, System, IMSS, IMSS, developed developed in in collaboration with collaboration with ISAC. ISAC. IMSS IMSS employs employs satellite satellite imagery imagery to to monitor and monitor and detect detect illegal illegal mining mining activity. activity. Till Till date, date, 243 243 satellite-based satellite-based image image triggers have triggers been have been generated, generated, showing showing illegal illegal mining mining activities which activities have which been have been forwarded to forwarded to concerned concerned DCs, DCs, SSPs, and SSPs, and GMOs GMOs for field for field verification and verification for and for strict strict enforcement of enforcement of mining laws. mining laws. The The department has department has integrated integrated real-time real-time dashboards with dashboards with e-challan e-challan and and e-marketplace e-marketplace systems, systems, facilitating the facilitating the online sale online of sale of minerals minerals and and digital digital challaning. challaning. GPS-enabled GPS-enabled vehicle vehicle tracking, tracking, RFID RFID APNR APNR cameras cameras mounted mounted on on toll toll plazas plazas, and and gantries on gantries on various various routes routes used for used for mineral mineral transport transport are being are being introduced introduced in in monitoring of monitoring of mining mining activities, activities, making making mining mining operationals operationals fully fully transparent and transparent and accountable. accountable. The The trial trial run of run these of these applications is applications is started to started to commence commence within a within a fortnight fortnight and will and will become become fully fully operational by operational by early early January January 2026. 2026. Active Active deterrence deterrence and and AI AI features in features our in our monitoring monitoring technology technology ensures ensures everyday everyday compliances. compliances. Citizens will Citizens will soon soon be be able able to to register register complaints complaints directly through directly through mobile mobile applications, applications, further further strengthening strengthening public public participation. participation. For For future future roadmap roadmap and and mineral mineral exploration exploration beyond beyond limestone, limestone, Department Department is is driving driving exploration of exploration other of other critical critical minerals, minerals, including including lithium and lithium and sapphire, sapphire, which are under dedicated study and and set to set to be be e-auctioned e-auctioned in the in the coming coming financial financial year. year. Active Active consideration consideration is is being being given given to to scientific scientific exploration and exploration and extraction extraction of of graphite, graphite, granite, granite, copper copper metal, metal, and and shallow shallow gas in gas in identified identified sites. sites. Detailed Detailed geological geological mapping, mapping, drilling, and drilling, and feasibility feasibility assessments are assessments are going on going on in in collaboration with collaboration with NACL and NACL and GSI GSI to to ensure ensure responsible and responsible and sustainable sustainable mineral mineral development development in in UT of UT of JNK. JNK. The The department has department has complied with complied with reforms reforms under under Special special Assistance to assistance to State for state for Capital capital Investment investments SASCI, SASCI, and we are and we are grateful to the grateful to the Ministry of Ministry of Mines Mines for for recommending our recommending our mining mining department department of of UT UT and and Jammu and Jammu and Kashmir Kashmir for for financial financial assistance assistance of of rupees rupees 100 100 crores crores under under SASCI
capacity for development of command and control centers, rapid response infrastructure to curb illegal mining and for ensuring scientific and sustainable mining. The operationalization of district mineral foundation trust ensures that mining revenues directly benefit local area development and welfare initiatives. The department is in final stages of establishing UT Mineral Exploration Trust,
Draft Draft notification notification has has been been submitted, submitted, and setting up of UT MED MED will will promote promote viable viable and and scientific and scientific environmentally environmentally safe safe mineral mineral exploration exploration in in UT UT of of JNK, JNK. besides Besides boosting its boosting mineral its wealth mineral and wealth and guaranteeing guaranteeing socio-economic socio-economic growth. growth. Revised Revised royalty royalty structures structures and and strict strict penal penal provisions are provisions being are being implemented to implemented to enhance enhance compliance with mining mining laws. laws. This This landmark landmark e-auction e-auction marks the marks the beginning of a beginning of new a new era era for for Jammu and Jammu and Kashmir Kashmir in in mineral mineral resource resource management with management, advanced advanced technology, technology, robust robust regulatory regulatory measures, measures, and and stakeholders' stakeholders' engagement. engagement. UT of UT of JNK JNK stands stands poised to poised to become become a a model for model for sustainable, sustainable, transparent, and and profitable profitable mining mining across the across the country. country. The The dedication dedication shown shown by all by all department department officers, officers, stakeholders, stakeholders, and and government government leadership is deeply appreciated. appreciated. And And together, together we will we will continue to continue to contribute contribute to the to the prosperity and prosperity and development development of of Jammu and Jammu and Kashmir. Kashmir. Welcome to this transformative transformative journey journey in mining in and mining mineral and wealth mineral wealth management, management, ushering in transparency, opportunity, and growth for our union territory. I would like to conclude with the share of Sahib Nidhanvi Sahab. हजार बर्क दे रहे हैं, बर्क यूज किया, हजार बर्क दे रहे हैं, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलते रहेंगे जो खिलने वाले हैं, वो फूल खिलते रहेंगे जो खिलने वाले हैं. धन्यवाद. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद श्री अनिल कुमार सिंह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर माइनिंग विभाग. भारत की माइनिंग फॉर्म्स और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ श्री संजय लोहिया जी, व द एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, भारत सरकार, कि वो इनॉग्रेशन एड्रेस की दृष्टि फ्लाइंग. आपकी जोरदार ताली के लिए श्री संजय लोहिया. Honorable Union Minister of Coal and Mines, Education Technology, Honorable Chief Minister of Jammu and Kashmir, Shri Umar Abdullah, Honorable Deputy Chief Minister, Shri Surendra Kumar Chaudhary, Additional Chief Secretary, JNK Government, Shri Anil Kumar Singh, Senior Officers of the State Government, Industry Representatives, and their media friends. Today is a very historic day, an important day for us as the Ministry of Mines as well as for Jammu and Kashmir, because the auction process which was brought in the MMDR Act in the year 2015, all other states had adopted it and have successfully auctioned almost 600 blocks till now. And JNK was a bit behind, and we got in touch with the government of JNK, and after some deliberation, it was decided that because the government of India has the vast experience of auctioning, etc., so we will conduct the auction of the first tranche of 7 limestone blocks on behalf of JNK, but all decisions with regard to these blocks are taken up jointly in consultation with the officers of the government of Jammu and Kashmir. And it is a historic opportunity for JNK. I don't think after 2015 any new mine has started working in this territory. And as I can understand, there is a huge demand for limestone in Jammu and Kashmir, because Jammu and Kashmir is in one end of the country, and cement, which is a bulky material to transport, becomes very costly to transport from this part of the country. So it will be very good. We are able to meet the increasing demand of cement in this area through local production of cement. And what we estimate, that Geological Survey of India has estimated almost 1 million tons of limestone reserves in the JNK. So I am hopeful that with this auction of 7 blocks, and as the Chief Secretary has informed, few more blocks coming up from the second round. This will be a drastic
change in the mining scenario in the UT of JNK. Mining not only leads to employment in the mining sector, it leads to industrial growth, employment in industrial growth, and also a significant increase in revenue for the state government. In fact, some of you may be aware that there are certain state governments like Odisha which are earning almost 50,000 crores in a year through mining. The auction premium itself, they are getting around 25,000 crores. So depending on the mineral potential of the state, the auction premium can become a very part. The challenge for us in the ministry and before the mining and geological department of the state government is that we should on planned manner explore all potential areas and put those blocks on auction as early as possible. So this is a very welcome step for JNK and for us in the ministry that JNK is becoming part of the auction map of India, and JNK has potential of other minerals also. There are coal and deposits are here. Some other deposits which have been discovered by GSI include lithium, gallium, copper, titanium, but we have to see gold also. We have to see how much of that mineral is economically viable. But as far as lithium, limestone blocks which are put on auction, limestone is definitely economically viable. And this auction will take place through the MSTC platform. MSTC is a PSU under Ministry of Commerce and Government of India. And many states are using this MSTC platform. The critical auctions we do also through MSTC platform. Many departments of government and states are going through MSTC platform. After this inaugural event, we will have a roadshow. I request all the industry representatives who are present here to after this inaugural function, lunch and then the roadshow on the blocks as well as the auction procedure, etc. So you please attend that. You get detail. And in the ministry we are always available. And I am also sure that the mining department is also available. Whosoever is interested to bid for these blocks, they are most welcome to visit those areas, as well as any clarification of the auction procedure or technical details of the blocks. We will be very willing to give you. And here, out of Honorable Chief Minister, I want to point out one or two things for future. Auction is the first part of the whole process. After the auction, the preferred bidder is declared. Then the concerned UT or the state government, they have to give a LOI to the bidder. It is a time process. And then we have to handhold the bidders who are successful to get bids so that they are able to get the land. If it is a government land, whatever is the procedure, that has to be first sorted out and we have to inform them. And if it is a private land, we somehow enable their able to get the private land. And if it is a forest land, the state government, the central government, they have to work together to forest clearance. And another important part is the EC, environmental clearance. So all these land, the ECFC, these three parts requires the cooperation of the local administration, and then we can expect these blocks to start construction maybe earliest 1 year, and hopefully things go well by 2 or 3 years. So I request that after this auction from the mining and geological department, they will continue to handle them. In fact, in the ministries we have a system of monitoring the auction blocks all over India, and we have a PMU also to look after that. We give support whatever is possible, advising, etc. regularly in this regard. And I take this also opportunity to just inform
that before coming for this meeting, our Honorable Union Minister, he had held a review with all the central agencies as well as the Please enter your PIN number followed by the hash. J&K on what are the various exploration activities which are being taken up, and he has also directed us that we should draw up a action plan so that taking this opportunity, whatever momentum is being built with this auction process going on, we should come up with many more blocks in coming future of whichever mineral which is possible. And I think this day we will all remember. It is a very important milestone in the economic development of this region. As I see it, a lot of big infrastructure projects are being done in the roads, rails, etc., tourism projects, maybe a lot of housing is also taking place. This gives a lot of demand for cement and limestone, and along with that other industries, limestone based industries will also come up. So I am hopeful that the industry representatives who are here, in fact sir, we have tried to get some representatives from the national industry associations also, so they can on their own or in partnership with the local industries, they can also have a look whether they can come and contribute to the economic growth of J&K. At the same time, we expect the local entrepreneurs of this Jammu and Kashmir to also, with open mind, take part in these auctions. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया सर, श्री संजय लोहिया, फॉर द एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, भारत सरकार। बड़े विस्तार पूर्वक आपने अहम जानकारी सभी प्रतिभागियों को दी है। देवी और सज्जनों, अब वो यकीनन बहुत अहम लम्हा, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, लॉन्च ऑफ ई ऑक्शन ऑफ लाइमस्टोन मिनरल्स ब्लॉक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी साहब को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला जी को, हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जी को, कि वो संयुक्त रूप से ई ऑक्शन ऑफ लाइम मिनरल ब्लॉक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का शुभारंभ करें। आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण, बड़ा ऐतिहासिक लम्हा कि संयुक्त रूप से हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी साहब, हमारे कर्टन रेजर बहुत कुछ। आज का दिन जम्मू व कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 7 नए लाइमस्टोन ब्लॉक्स का लॉन्च केवल एक प्रशासनिक निर्णय ही नहीं, बल्कि ये यूटी की मिनरल पोटेंशियल को अनलॉक करने की एक रणनीतिक पहल है। इन ब्लॉक से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, रोजगार के नए मौके बनेंगे और सीमेंट तथा कंस्ट्रक्शन जैसे प्रमुख सेक्टर्स को यकीनन मजबूती मिलेगी। ये कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत विजन के बिल्कुल अनुरूप और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराता है। रिस्पॉन्सिबल और साइंटिफिक माइनिंग प्रैक्टिसेस के साथ जम्मू व कश्मीर आज दीर्घकालिक सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। बहुत बहुत आभार अभी महानुभाव का। अब मेरा विनम्र निवेदन है ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जी से कि वो अपने बहुमूल्य विचार हम सब से साझा करें। आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जी। Honorable Union Minister Janab
जी कृष्णा रेड्डी साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, श्री अनिल सिंह जी ACS, श्री संजय लोहिया साहब एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैडम फरीदा जी जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ बैठे ऑफिसरान और मेरे सामने अलग अलग शोबों से जुड़े आए हुए सब, आप सबका मंदिरों के शहर जम्मू के अंदर स्वागत है। और ऑनरेबल रेड्डी साहब, इस माँ वैष्णो देवी के चरणों में आपका यहाँ स्वागत है। आज जैसे मेरे ACS साहब ने माइनिंग के ऊपर बड़े विस्तार से आप सबको बताया कि जम्मू कश्मीर की माइनिंग के क्या हालात हैं और हम क्या क्या करने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्नों में जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार बच्चों के लिए और जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री के लिए और बिज़नेस के लिए एक बहुत बड़ा वक्त हमेशा ये याद किया जाएगा, इस दिन को याद किया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर पहाड़ों से दूर दराज इलाकों से घिरा हुआ एक प्रदेश, हम तो निकल जाता है हम लोगों से, हम हैं यूटी हैं, तो ये वो यूटी है और इस यूटी में यहाँ की आबो हवा और इस आबो हवा के अंदर ये ऐसा एक सोना अलग अलग पहाड़ों में बिखरा पड़ा है जिसको तलाशने के लिए और जिसको निकालने के लिए जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने बड़ी कोशिश की। और ये लाइमस्टोन के जो 7 ब्लॉकों के लिए आज यहाँ ही पोर्टल लॉन्च हुआ, रेड्डी साहब मैं आपको बताना चाहूँगा इस पूरे फाइल को ऑनरेबल CM साहब ने पर्सनली सुपरवाइज किया और इसमें मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज इस दिन पे पहुँचे और आप आके यहाँ पे इस पोर्टल को लॉन्च कर रहे हैं, तो मैं उमर साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने पर्सनल पेन लेके इस फाइल को निकाला और काम किया। थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि माइनिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं इंचार्ज माइनिंग मिनिस्टर भी हूँ, इन फाइलों को हाथ लगाने में थोड़ा डर भी लगता है क्योंकि जो मीडिया कहीं नहीं लिखेगा माइनिंग पे बिल्कुल अचानक आके लिखना शुरू हो जाएगा। और हम लोग, क्योंकि रेड्डी साहब समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल लोगों के लिए ऐसी फाइलें बड़ी मुश्किलों से निकलती हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमारे हाथ से जब कोई निकल के जाए तो वो जम्मू कश्मीर सरकार का भी नाम बुलंद करे, वो हिंदुस्तान की मोदी सरकार का भी नाम बुलंद करे। ये मकसद हमारा रहा। थोड़ा सा ये लेट हुआ, ये पिछले साल हो जाता, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही जिसके कारण ये लेट हुआ। लेकिन कहावत है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और आज वो दिन आ गया जब आज इस 7 जो माइंस हैं हमारी लाइमस्टोन की, इनका आगाज़ हो रहा है, इनकी ऑक्शनिंग के लिए आज प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ लिथियम और सफ़ायर के लिए भी हम लोग लगे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार की बड़ी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उसको भी इसी तरीके से एक दिन आप लोगों के सामने हम ये खुशखबरी लाएं। लेकिन हमें मुश्किलें काफ़ी हैं। शायद रिव्यू मीटिंग में मेरे ऑफिसरान ने रेड्डी साहब को बता दिया होगा कि रिसोर्सेज की कमी है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ्स हैं, थोड़ा सा बजट में कम पैसा, जिसके कारण थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज का दिन जो आज सुबह हुई है, इस सुबह के बाद अब रोज़ नए नए दिन आएंगे और जो हमें ये रिसोर्सेज की कमी है जम्मू कश्मीर माइनिंग डिपार्टमेंट में, उनमें भी कमी आएगी, उनके जो कुछ हैं दिखते हैं वो दूर हो जाएंगी। इस उम्मीद के साथ
मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं। रेड्डी साहब, आपको बहुत बहुत बधाई, और मैं अपने चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये दिन हमारे लिए बड़ा अच्छा दिन है। और ये एक दिन दोबारा जब हम याद करेंगे तो हमारे बच्चे जिनको रोज़गार इन नए प्रोजेक्टों से लगेंगे, इन माइनिंग के नए जो हमारे जो चीज़ें हम नई खोज हो रही है और खोज कर रहे हैं, जो फ़ायदे होंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को और जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि इन्वायरमेंट के साथ भी कहीं छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि इन पहाड़ों की खूबसूरती इसलिए है कि इनकी जो इन्वायरमेंट है उसके कारण जम्मू कश्मीर है। इन पहाड़ों को भी हमने दुरुस्त रखना है, लेकिन उसके साथ साथ इन पहाड़ों से अपने रिसोर्सेज भी पैदा करने हैं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जी। आपने बहुत सुंदर तरीके से फरमाया कि किस प्रकार आज की सुबह के बाद यकीनन हर सुबह नई खुशी, नई उमंग लेकर के आएगी, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए। इस महत्वपूर्ण व फर्स्ट एवर ऑक्शन के बारे में अपने विचार हमसे साझा करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला जी को कि बराए मेहरबानी अपने स्पेशल एड्रेस के लिए तशरीफ़ लाएं। आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मरकज़ी कोल और माइंस के वज़ीर जनाब जी किशन रेड्डी साहब, काबिना में मेरे साथी सुरेंद्र चौधरी साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी माइनिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अनिल कुमार सिंह साहब, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संजय लोहिया साहब, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फरीदा नायक साहिबा, मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर हुकूमत के यहाँ आए हुए तमाम अफसरान और दोस्तों, आप सबको मेरे तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। मैंने अक्सर अपने साथियों से बात करते हुए मजाक के तौर पे ये शिकायत दर्ज की है कि ऊपर वाले ने जो भी जम्मू कश्मीर को दिया वो ऊपर ऊपर से ही दिया। जब खूबसूरती बांटी जा रही थी तो कोई कमी नहीं रखी, जब दरियाओं में पानी बांटा जा रहा था उसमें भी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन ज़मीन के अंदर जब कुछ खजाना रखने की बारी आई तो शायद जब तक हमारा नंबर आया तो ज़्यादा कुछ बांटा गया था। यहाँ पे लोहिया साहब के हवाले से उड़ीसा का जिक्र हुआ और कहा गया कि 20,000 करोड़ रॉयल्टी में उनकी कमाई है, और मैं अपनी जगह सोचना शुरू कर गया कि अगर 20,000 का 10% हिस्सा भी हमें नसीब होता तो जम्मू कश्मीर के हालात ही अलग होते। शायद उन हालात को अब तब्दील करने में आज का दिन जो है ये एक नई शुरुआत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि ऊपर ऊपर से जो हमें मिला सो मिला, अब शायद नीचे से भी कुछ हासिल करने की हम उम्मीद कर सकते हैं। अब चलिए, तेल ना सही, कोयला ना सही, स्टील ना सही, चांदी ना सही, अभी सोने का जिक्र हुआ था, सोना निकले ना निकले वो देख लेते हैं, लेकिन लाइमस्टोन तो कम से कम है, और ये लाइमस्टोन उन इलाकों में है जहाँ पे माली हालत, मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन उन ज़िलों की काफ़ी खस्ता है। पुंछ की बात करें तो वहाँ रोज़गार के
जो वसाइल हैं कम हैं। रजौरी की बात करें तो वही हाल, अनंतनाग में शायद थोड़ा बेहतर। तो उम्मीद की जाती है कि जब ये 7 ब्लॉक्स जो हैं ये डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, इनके साथ जो एंसिलरी इंडस्ट्री लगेगी उसका उन इलाकों को भरपूर फ़ायदा होगा। और इसके साथ आज इत्तेफाक से मेरी खुशकिस्मती रही कि रेड्डी साहब के साथ एक ही जहाज़ पे दिल्ली से आने का मौका मिला। तो जहाज़ में बात हुई और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने फौरी तौर अपने तरफ से ये कहा कि वो चाहते हैं कि एक स्पेशल ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में वो बनाना चाहते हैं, जिसमें कि यहाँ जम्मू कश्मीर में एक्सप्लोरेशन की हमें मदद मिले, ताकि पता चले वाकई है क्या। जहाँ लिथियम की बात आ जाती है तो पहले तो हमें यह तय करना होगा कि है कितना लिथियम वहाँ पे, क्या इतना है कि हम उसको कमर्शियली जो है निकालने का काम कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास है उसका ठीक तरह से इस्तेमाल हो। हम सब ने बचपन से पाडर के नीलम के बारे में सुना है, लेकिन उसको पूरी तरह से कमर्शियली अभी तक हम एक्सप्लॉइट कर नहीं पाए। इसी तरह कुछ इलाके जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जहाँ संगमरमर मार्बल डिपॉजिट्स के बारे में हम सुनते आए हैं, लेकिन उनको भी कमर्शियली हम एक्सप्लॉइट कर नहीं पाए। यहाँ तक कि जो 7 ब्लॉक्स आज ई ऑक्शन के ज़रिए अब इनको अलॉट करने का काम आज से शुरू हुआ है, इसमें भी ये कोई छुपी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने खुद कोशिश की थी कि ये ई ऑक्शन अपने तरफ से हो जाए। लेकिन चाहे हमारी हुकूमत आने से पहले या हमारी हुकूमत आने के बाद हमारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। ट्रांजैक्शन एडवाइज़र लगा नहीं सके, उसके बाद जो टर्म्स कंडीशंस वगैरह ये सेट होने थे, कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, फाइलें जो हैं वो भटकती रहीं और फ़ैसला हो नहीं पाया। इसमें बीच में फिर रेड्डी साहब ने दिल्ली से फ़ोन उठाया, मुझसे बात की और कहा कि आप इसमें जो है खुद दिलचस्पी लेके इस मामले को आगे बढ़ा दीजिए, ताकि हम ये ई ऑक्शन का सिलसिला जो है उसको हम मंजिल तक पहुंचा पाएँ। मैं यहाँ एक चीज़ को क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि हमारे सियासी दोस्त बहुत हैं और मैं जानता हूँ कि अगर मैं इस चीज़ को आज क्लियर नहीं कर गया, कल अखबार के ज़रिए ज़रूर ये ख़बर जो है फैलाने की कोशिश करेंगे कि हमने अपने माइंस जो हैं वो मरकज़ की हुकूमत के हवाले किए हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात ही नहीं है। मरकज़ ने हमारी मदद जो है उन्होंने अपनी मदद ऑफ़र की। कहीं पे भी ये माइंस जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले नहीं किए जा रहे हैं। कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमसे इन माइंस में से कोई हिस्सा जो है अपने लिए ही नहीं मांग रही है। यहाँ तक कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कहीं पे भी हमें इस चीज़ के लिए मरकज़ की हुकूमत को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। उल्टा इनकी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर की कमाई जो है वो बढ़ जाए। आज 500 करोड़ की बात की जा रही है। जब और ब्लॉक्स जो हैं आइडेंटिफाई होंगे, उम्मीद करता हूँ कि ये कमाई जो है बढ़ जाएगी। और मैं उस जम्मू कश्मीर को देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ जहाँ के एक दिन ऐसा आए कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला को दिल्ली जाके पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। उल्टा हमारी कमाई इतनी होगी कि हम जो हैं न सिर्फ खुद कफ़ील होंगे बल्कि मरकज़ को एक हिस्सा जो है यहाँ से दे पाएंगे। और ये इन तरीक़ों से होगा। एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, सुरेंद्र चौधरी जी ने तो उसको मतलब जितने साफ अल्फाजों में सुरेंद्र ने इसके बारे में बात की मैं शायद नहीं करता, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है ये ब्लॉक्स जो हैं ये ऑक्शन हो जाएं। और जैसे लोहिया साहब ने कहा, मैं आप सबको जो इस ऑक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी हुकूमत की तरफ से जहाँ पे भी फॉरेस्ट क्लियरेंस और एनवायरनमेंट क्लियरेंस, लैंड वगैरह के मामले आ जाएंगे, जितना भी हमें करना होगा इस ऑक्शन को कामयाब बनाने में, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जम्मू कश्मीर हुकूमत के तरफ से कोई रुकावट पेश नहीं आएगी। उल्टा हमारे तरफ से हर वो मुकम्मल कोशिश की जाएगी कि ये प्रोसेस कामयाब रहे और इसके बाद आने वाले प्रोसेस जो हैं
उनको भी हम कामयाब करें। लेकिन आज के मौके पर मैं अपने तरफ से, अपने साथियों के तरफ से रेड्डी साहब का और उनके अफसरों का यहाँ जम्मू में खैर मकदम करते हुए उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम आज का जम्मू कश्मीर के लिए और हमारे मुल्क के लिए कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप लोग बड़ी देर से इंतज़ार यहाँ कर रहे थे, बड़ी देर से बैठे हुए हैं बड़े सब्र तहम्मुल के साथ, लेकिन एक चीज़ में मैं देख रहा हूँ कि आप कंजूसी कर रहे हैं, वो है तालियां बजाने में। जब उमर साहब ने अपने जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र किया इतने सुंदर तरीके से, इतने सुंदर अल्फाज के साथ, तो उसके ऊपर आपकी तरफ से ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। तो ज़ोरदार तालियां। जिस तरह से हमारे वज़ीर आला ने जिक्र किया, कितने सुंदर अल्फाज में कहा गया है कि अर्श से फर्श तक एक हसीन तस्वीर, जन्नत बेनज़ीर हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर। और देवी और सज्जनों, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस श्री जी किशन रेड्डी, जिनकी लीडरशिप ने भारत के मिनरल सेक्टर को ट्रांसपेरेंसी और ग्रोथ की ओर अग्रसर किया है, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि अपने की नोट एड्रेस द्वारा अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी साहब। Good afternoon, one and all. Respected Sri Umar Abdullah Sahab, Honorable Chief Minister of Jammu Kashmir, respected Surendra Kumar Chaudhary ji, Deputy Chief Minister of Jammu Kashmir, Sri Sanjay Lohia ji, Additional Secretary, Ministry of Mines, Government of India, Sri Anil Kumar Singh ji, Additional Chief Secretary, Jammu and Kashmir, Srimati Farida ji, Joint Secretary, Ministry of Mines, Government of India, और सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जम्मू कश्मीर प्रदेश के पूरे अधिकारी गण, अतिथि महोदय, जितने भी इस एक्शन के लिए पार्टिसिपेट किया है, सभी एंटरप्रेन्योर्स को, कंपनीज को और प्यारे हमारे मीडिया साथियों को मैं हृदय से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर फिर एक बार भारत सरकार की ओर से, जम्मू कश्मीर के सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं। आज 7 लाइमस्टोन के मिनरल ब्लॉक्स का अभी आदरणीय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के समक्ष में हम सब मिलकर लॉन्च किया है। आज जम्मू कश्मीर, बहुत खुशी की बात है, मिनरल एक्शन मैप में जम्मू कश्मीर जोड़ा है। आज ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स राजनीति से ऊपर उठकर उस प्रांतों के विकास के लिए, उनके प्रांतों के नौजवानों को, जनता को रोजगार के लिए और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के मजबूत करने के लिए आज सभी स्टेट गवर्नमेंट्स मिनरल एक्शन मैप में आ गया है। ये 2014 में सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश था, आप ट्रांसपेरेंसी के साथ
माइनिंग सेक्टर को सुधारना है, माइनिंग सेक्टर को रिफॉर्म करना है। उस सुप्रीम कोर्ट को आदेश को देखते हुए भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट रूप से इस एक्शन का रिजीम लाया है। वो कोल ब्लॉक्स हो, मिनरल ब्लॉक्स हो, हम लगभग 1000 से ज्यादा आज एक्शन किया है सक्सेसफुली। एक मिनरल ब्लॉक का भी कोई प्रॉब्लम ना होते हुए 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ आज इस एक्शन रिजीम चल रही हैं। इससे जम्मू कश्मीर के लिए भी नया अवसर होगा, नया विकास का संभव होगा। हम सभी इस दिन के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से बात किया हूं ओपन हार्टेडली, रेड्डी साहब हमारा स्टेट में विकास चाहते हैं, हम जरूर इसमें माइनिंग सेक्टर के लिए हम हमारा मंत्रिमंडल में चर्चा कर रहे हैं, सरकार में चर्चा कर रहे हैं, जल्दी ही हम एक्शन रिजीम में आएंगे ऐसा विश्वास दिया है। आज जम्मू कश्मीर के जनता के सामने, देश के जनता के सामने जो वादा किया है, आज वादा निभाने के लिए आप सबके सामने हम मिलकर आए हैं। पिछले कुछ महीनों में माइनिंग मिनिस्ट्री, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर प्रदेश के सरकार मिलकर इस लाइमस्टोन का आइडेंटिफिकेशन किया है, उसका एक्सप्लोरेशन पूरा कंप्लीट किया है और उसका एक्सप्लोरेशन का असेसमेंट करके आज 7 ब्लॉक्स का एक्शन के लिए आज प्रिपेयर करके देश के सामने हम ई एक्शन के संबंधित द्वारा हम दुनिया के सामने लगा रहे हैं। ये कार्य कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के द्वारा ही कंप्लीट होता है। आगे भी इसी भावना के साथ जम्मू कश्मीर को भारत का मिनरल पावर हाउस बनाने के लिए लगातार जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार, सभी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, मिशनरी, जम्मू कश्मीर जनता मिलकर हम काम करना होगा। हम मिलकर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के नाते मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में आपको मालूम है स्टेबिलिटी, ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली वातावरण देश भर में एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। आज इस माइनिंग मिनिस्ट्री का, जम्मू कश्मीर प्रदेश का ये निर्णय एक ऐतिहासिक शुरुआत है। उसी परिवर्तन को गति लेते हुए हम आगे बढ़ना है। आज ये दर्शाता है पूरा देश अब एक नया रिफॉर्म बेस्ड पे एक व्यवस्था के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले दिन में भारत एक ही रिफॉर्म के द्वारा आगे बढ़ना। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड इन्फॉर्म, इसका प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, इसके ज्यादा हम पूरा मिलकर काम करना होगा। आपको मालूम है 2014 में मैं अभी बता रहा था, 2014 को पहले मिनरल सेक्टर का इश्यू था, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं, मगर मिनरल पोटेंशियल का लाभ देश को दिलाने का जिम्मेदारी जनता हमारा ऊपर दिया है। बिल्कुल इस मिनरल सेक्टर का पोटेंशियलिटी जनता को लाभ मिलना है, हर स्टेट विकास के ओर आगे बढ़ना है। आज MMDR एक्ट में अलग अलग बदलाव लाए हैं, आने वाले दिन में भी लाएंगे। और
इसमें इन्वेस्टमेंट्स आना चाहिए, स्टेट्स को विकास तेजी गति से आगे बढ़ना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, कॉम्पिटिटिव के साथ एफिशिएंट बनाना चाहिए। माइनिंग सेक्टर को इस इनिशिएटिव के कारण आज ट्रांसपेरेंसी, डायनेमिज्म, अकाउंटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस लाने के लिए हम मिलकर प्रयास करना चाहिए। मित्रों, आज दुनिया में तेजी से मिनरल इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, क्योंकि क्लीन एनर्जी, नया टेक्नोलॉजी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब मिनरल पर निर्भर है। बिना मिनरल का, वो कोल हो, मिनरल्स हो, आज आगे नहीं बढ़ सकता है। आज भी भारत लगभग 74% ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी कोल के द्वारा, थर्मल पावर के द्वारा जनरेट होता है। आज जनता एक दिन भूखा रहेंगे, मगर एक दिन बिना बिजली का नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हम एक सस्टेनेबिलिटी के साथ हर सेक्टर का जो देश का जरूरत है उसको पूरा करने के लिए हम काम करना होगा। इसीलिए इसमें विकसित भारत का विजन को और हम मिनरल प्रोडक्शन को आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा, आत्मनिर्भर बनाना होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर बड़ी भूमिका निभाना चाहिए। मिनरल इकोनॉमी एक मजबूत स्तंभ बनकर आने चाहिए। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री बोल रहे थे, जम्मू कश्मीर जो इनकम के संबंधित, मैं झारखंड का हो, मैं उड़ीसा का हो, मध्य प्रदेश का हो, तेलंगाना का हो, कर्नाटका हो, अलग अलग प्रांतों में माइनिंग सेक्टर के द्वारा बहुत बड़ा रेवेन्यू उस स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। अभी स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी भी ऐलान किया है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई टैक्स नहीं लेते हैं। पूरा जितने भी इस मिनरल के द्वारा, माइनिंग सेक्टर के द्वारा वो प्रीमियम हो, स्टेट गवर्नमेंट खाता में जाता है। जो रॉयल्टी हो वो स्टेट गवर्नमेंट खाता में जाता है। जो डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हो, उस इफेक्टेड एरिया में लोगों का भला करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, स्किलिंग बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जिला कलेक्टर नेतृत्व में काम होता है। जो भी अदर टैक्सेस हो स्टेट गवर्नमेंट का, पूरा 100% स्टेट गवर्नमेंट के लिए जाता है। भारत सरकार का थोड़ा हम इनिशिएटिव लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट लेते हैं, एक्ट्स बनाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को मेरे हैंड होल्ड करते हैं। इसके लिए आज ये काम, जैसा मुख्यमंत्री जी बताया, वही काम आज भारत सरकार के द्वारा मैं आपके सामने ठहरा हूं। आज जम्मू कश्मीर अभी एक नेचुरल ब्यूटी है, रिच कल्चर है, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, साथ साथ कोल और मिनरल का वेल्थ का भी बड़ा खजाना है। पिछले 3 सालों में जीएसआई ने 13 बड़ा एक्सप्लोरेशन का काम पूरा किया है। 4 कॉपर माइंस का, गोल्ड प्रोजेक्ट्स का भी काम चल रही है। कश्मीर लिग्नाइट ब्लॉक का भी एक्सप्लोरेशन का शुरू हो चुका है। मित्रों, आज डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए हम मिलकर काम करना है। जब माइनिंग एक्टिविटी से बढ़ेगा, सबसे पहले लोकल एम्प्लॉयमेंट, रोजगार लोगों को फायदा होगा। मशीन ऑपरेटर्स हो, ड्राइवर्स हो, इंजीनियर्स हो, माइनिंग सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज हो, सर्वेयर्स हो, लैब टेक्नीशियंस हो, अलग अलग इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी हर माइनिंग एरिया में मिलता है।
हर स्तर के लोगों के लिए माइनिंग सेक्टर एक नया अवसर होगा। माइनिंग सेक्टर से जुड़े हुए इंडस्ट्रीज, क्रशिंग यूनिट्स हो, प्रोसेसिंग प्लांट्स हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हो, जम्मू कश्मीर में भी लाभ उठा सकते हैं। इससे एक नया वैल्यू चेन खड़ा होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को ये मजबूत कर सकते हैं। मित्रों, जम्मू कश्मीर के बारे में अभी अभी बता चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब रिकॉर्ड लेवल पर चल रही है। वो रोड का एक्टिविटी हो, ब्रिजेस का एक्टिविटी हो, रेलवे का एक्टिविटी हो, हर गांव का स्कूल का एक्टिविटी हो, हॉस्पिटल का एक्टिविटी हो, हर सेक्टर में जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी बढ़ रही है। अभी बढ़ने का बहुत बड़ा उम्मीद है, बढ़ना भी चाहिए, काम करना भी है। जम्मू कश्मीर का जनता का एक्सपेक्टेशन है, हमारा को पूरा अधिकार है विकास का रास्ता में, हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर जम्मू कश्मीर का जनता का एक्सपेक्टेशन है। उनका एक्सपेक्टेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम अलग अलग काम, स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, मिलके काम कर रही है। वो चिनाब ब्रिज हो, अंजीकंड ब्रिज हो, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे स्टेशन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स हो, कनेक्टिविटी, टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटी को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलना होगा। ऐसी इंफ्रा का सीधा बेनिफिट माइनिंग सेक्टर के द्वारा ही हो सकता है। माइनिंग क्षेत्र में रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी जैसी सुविधाओं को तेजी से विकसित करना है, लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, युवाओं के लिए हजारों के अवसर फायदा करना है। आज इस एक्शन के द्वारा अनंतनाग, राजौरी, पुंछ के लैमस्टोन ब्लॉक्स की नया अवसर मिलेगा। ये शुरुआत है, अभी बहुत दूर मंजिल पहुंचने का है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है आने वाले दिन में हम इस एक्शन को लाइमस्टोन के बाद सीमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़ेगा, इंजीनियर वर्कर्स, ट्रांसपोर्टर्स, ऐसी लोकल एक्टिविटी बढ़ेगा। मैं आज का लॉन्च को पूरे देश के इन्वेस्टर्स के लिए एक निमंत्रण करता हूं। आप लोग आइए, जम्मू कश्मीर विकास में आप लोग भागीदार होना चाहिए। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, इसको पूरा तरह विकास करने का जिम्मेदारी हमारा ऊपर है और उसका अधिकार भी, विकास का पूछने का अधिकार भी जम्मू कश्मीर जनता का है। इसलिए एक ट्रांसपेरेंट एक्शन सिस्टम में मिनरल रिसोर्सेज, सपोर्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड और सस्टेनेबल माइनिंग करने वाले इन्वेस्टर्स को मैं स्वागत करता हूं। अभी आने वाले दिन में एक्सप्लोरेशन स्पीडी करेंगे, हर अलग अलग कोल का भी, अलग अलग मिनरल्स का भी एक्सप्लोरेशन अभी स्पीडी गति से आगे होगा। अभी स्टार्टिंग ट्रबल था हमारा, अभी शुरुआत हुआ है। अभी जैसा मुख्यमंत्री जी जो बता रहे थे, जम्मू कश्मीर विकास होना है, विकास के लिए हमारे को रेवेन्यू भी चाहिए। बिल्कुल जम्मू कश्मीर में रिसोर्सेस है, आज भी मैं रिव्यू किया हूं। आने वाले दिन में इसको और आगे बढ़ाते हुए हम काम करना होगा। आज एक मिनरल वेल्थ जम्मू कश्मीर की प्रगति का, विकास का नया इंजन बनकर आगे बढ़ना है। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए आज लगभग 96 जो एंटरप्रेन्योर्स आज इस हाल में बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आप लोग जम्मू कश्मीर को विकास करने में आपका रोल आने वाले दिन में मजबूत होना चाहिए। आप लोग दिल खोलकर, मन से, एक कमिटमेंट के साथ एक विकास रास्ता पे जो आगे बढ़ना है, इसका आप लोग सहयोग चाहिए। इसलिए आज इस बैठक के बाद डिटेल हर एक लाइमस्टोन के बारे में चर्चा करिए। आने वाले दिन में
बहुत अवसर जम्मू कश्मीर में इस मिनरल सेक्टर में है। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं बता रहा हूं, अभी एक दिन पूरा बैठेंगे हम, पूरा एक्सप्लोरेशन का स्पीडअप करना। हमारा भारत सरकार का लगभग 3-4 एक्सप्लोरेशन एजेंसीज है, उनके द्वारा भी एक्सप्लोरेशन करेंगे और प्राइवेट एजेंसीज को एक्सप्लोरेशन करेंगे। जम्मू कश्मीर भी स्टेट एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाएंगे, डेवलपमेंट ट्रस्ट, उनको भी भारत सरकार पैसा देंगे। किसी भी हालत में हम जम्मू कश्मीर में विकास देखना है, जम्मू कश्मीर जनता को रोजगार देना है, जम्मू कश्मीर में अलाइड इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है, मिनरल सेक्टर को एक मजबूत इंजन बनाकर आगे बढ़ना है। इसके लिए आप सब लोग इसमें भागीदार हो जाइए। इस शब्द के साथ फिर एक बात मेरा ओर से, भारत के सरकार के ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, उनका पूरा सरकार को, उनके टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। आज इस रिजीम में आने के लिए मैं स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस श्री जी किशन रेड्डी जी। हमारा आज का ये ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का जो इनॉग्रल सेशन है वो समापन की ओर है। आपका आभार व्यक्त करने के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मेरी गुजारिश है और दी जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस श्रीमती फरीदा एम नाइक जी से कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए तशरीफ लाएं। आपकी तालियों के बीच श्रीमती फरीदा एम नाइक। Honorable Minister of Mines and Coal, Shri Ji Kishan Reddy ji, Honorable Chief Minister Jammu and Kashmir, Janab Omar Abdullah Sahab, and Honorable Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Shri Surinder Kumar Chaudhary ji, Additional Secretary, Ministry of Mines, Government of India, Shri Sanjay Lohia ji, Additional Secretary of Jammu and Kashmir, Shri Anil Kumar Singh ji, dignitaries of the dais, industry representatives, central government and Jammu and Kashmir के मौजूद अफसरान and all participants and media के मौजूद अफसरान and all participants and media. On behalf of Ministry of Mines, as a designated officer who has been assigned the responsibility of conducting these auction, it is my honor to present this vote of thanks on this historic occasion. I would say it is a historic occasion for many reasons, as it has been pointed out by dignitaries on the dais. As a designated officer, it is for the first time that I'm going to conduct auction for any mineral besides critical mineral. It is the sign of commitment of central government and Jammu and Kashmir government for unlocking the mineral wealth of Jammu and Kashmir. I would first of all like to thank our Mantri ji for his strenuous effort. He has been taking continuous review of us to understand and to push for the auction of these blocks. I would also like to thank Shri Omar Abdullah ji for giving go-ahead and taking personal interest in the auction of these blocks. Thank you very much, sir. I would also like to thank Deputy Chief Minister Shri Surinder Kumar Chaudhary ji for finally giving go-ahead for this project. Thank you very much, sir. I thank all the three dignitaries to be present here on this historic occasion to be part of this, despite their busy schedule. Thank you very much, sir. I would also like to thank our Secretary of Mines, Shri Piyush Goyal ji, who has been instrumental and who has been coordinating closely with the state government for making this happen. And I would like to thank our additional secretary, who is a source of inspiration and a guiding force for all of us in the ministry. Once he has seen the proposal, I personally feel confident that, okay, it can go through. Thank you very much, sir. Without your support and guidance, it is difficult for us to go ahead in these matters.
I would also like to thank ACS sir of Anil Kumar Singh ji of Jammu and Kashmir for his coordination with us, and thank you very much, sir. You have personally visited Delhi for discussion for these auction of these blocks. Thank you very much, sir. I would also like to thank the DMG, Surajji sir, and his team for making all the effort for coordinating and making this happens. I would like to thank the DMG team, the GSI team, MECL team who has explored these blocks and given us the report, our transaction advisor SBI CAP for making this happen, and our MSTC, the block, MSTC, the portal on whose portal the auction is going to take place. I would also like to thank all the industry representatives, and it is my, as a DO, I would like to reiterate once again that please be part of this auction. After this event, after the lunch, there is going to be a road show which will give you insights into how the auction is going to take place. So please attend that, and we have given you the booklet, and it contains the details of all the contact details which will be essential for you when you are participating in the blocks. So please keep it safely, and do participate in the roadshow which is going to happen after lunch. So thank you very much. Once again, I thank all the dignitaries on the dais, of the dais. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया वो द जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस श्रीमती फरीदा एम नाइक जी। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद तशरीफ़ आवरी के लिए कि अपनी